By Akhil Bharat Hindu Mahasabha against the proposed ordinance to take over by the government the Baki Bihari temple at Vrindavan. National President Rajashri Chaudhary along with Vice President Administration Anil Tripathi, Akhil Bharat Hindu Mahasabha visited Vrindavan today morning where the Assam and North Eastern President Vishwadip Gupta was also present. Namaskar, Jai Hindu Rashtra. I am here in Vrindavan in the holy district of Mathura and Brij Mandal to protest on behalf of Akhil Bharat Hindu Mahasabha on the ordinance that has been passed by the UP government through Her Excellency the Governor of UP in the absence of the local legislative assembly on takeover ordinance of Baki Bihari Ji Mandir. Now Baki Bihari Ji Mandir was set up by Swami Haridas Ji centuries ago, and this is the sole attraction and the spiritual attraction of lakhs and lakhs and crores of pilgrims to visit Vrindavan. And to take over and corporatize the mandir and snatch its movable and immovable assets which have been very carefully protected through centuries by the Goswami Parivars or the families is not only a kind of loot, a plunder, but it is also an anti-Hindu, anti-Sanatani step by the present administration. And Hindu Mahasabha, which is committed to the socio-politically committed towards the revival and protection of Sanatani civilization, vehemently protests against this, and we today join the protesters who are already on the streets of Vrindavan protesting against this takeover, as well as plans of corridor and other modernization at the cost of the spiritual entity of Vrindavan. They are already there and we have joined hands with them, and we will henceforth continue to be with the protesters along with our other judicial and political pressures that we are planning to put on the government so that they roll back this ordinance and does not dare to reach out to the Hindu community with such threatening ordinances and policies. And we will also ensure that the blood of Arjuna, the Pandava, the friend, the closest friend of Baki Bihari Ji, his clan, his blood is saved, his blood is protected through policies and other special preferences by the administration called the Meitei tribe of Manipur. We will ensure that the huge scam of plundering and looting of the Padmanabha Mandir, ancient Padmanabha Mandir of southern India, is also stopped and inquired into, because Hindu funds given to mandirs, given to temples are for Hindu usage. It is not for the government, a secular government which does not believe in Hinduism, to snatch those donations and divert it for other purposes. It is cheating the devotees. Hence, this Padmanabha Mandir loot needs to be taken care of, and we will also protest against the takeover of Asharam Bapuji's ashram in Ahmedabad, which is the site which is mentioned in Padma Puran and other holy Vedic scriptures, and it is also the sadhana sthal of Vedic Rishi, one of the Vedic Rishis. And when that was dug up, the area was dug up, there were trucks and trucks loaded with fire sacrifice ashes. So this was a Vedic holy place which the government has intended to take over for Olympics, a very temporary activity purpose, where there are other alternatives available. So this kind of purposeful dent on Sanatana civilization and Hindu culture, Hindu monuments, Hindu sites, Hindu sentiments is not only anti-Hindu,
very Sanatani, but it is a demonic process by which the present administration and the past administrations, since the invasions that took place centuries back, their intention to diminish, eliminate Sanatana civilization, and we will not stand that. Akhil Bharat Hindu Mahasabha is pledged to protect, restore, preserve, research Hindu culture and Hindu civilization. Namaskar, Jai Hindu Rashtra. जो हमारे ऊपर 500 करोड़ रुपए फंड यूज करने की बात चली थी मंदिर वाला, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, बेला त्रिवेदी जी ने ऑर्डर कर दिया था कि हमारे मंदिर का पैसा जो है मंदिर की आसपास की संपत्ति को खरीदने के लिए पैसा यूज किया जाएगा। हमने उस केस में रिव्यू डाला और जब दूसरी जज आई तो उन्होंने कहा कि ये जो ऑर्डर किया गया है गलत किया गया है। आपने किसी मंदिर और किसी मंदिर का मामला था, गिरिराज जी मंदिर का मामला था, उसमें बरस 84 कोष के 197 मंदिरों को लिया गया, उसमें जबरदस्ती बाकी बिहारी मंदिर में मंदिर के फंड यूज करने के लिए ऑर्डर कर दिया गया, जो बिल्कुल इलीगल था, जिसमें हम पार्टी नहीं थे, हमको सुना ही नहीं गया। जबरदस्ती मामला हाईजैक कर लिया गया, उस पर यूपी सरकार को फटकार लगी सुप्रीम कोर्ट से। और उसमें 29 जुलाई की डेट पड़ी हुई है कि 29 जुलाई में देखते हैं क्या होता है, क्योंकि जबरदस्ती हमारे पैसे का फंड यूज कर रहे हैं, जबकि हमारा निजी मंदिर है, हमारा निजी मामला है। और दिया है कि सरकारी लैंड जहाँ 10, 5, 20, 15, 30 जो भी एकड़ मिल जाए हमें मंदिर के लिए दे दीजिए, हम अपने मंदिर के लिए अपनी आपसी भूमि खरीद लेंगे और वहाँ पे एक नए मंदिर का निर्माण करते हैं। उससे भी पूरा वृंदावन का संरक्षण हो जाएगा, पूरे वृंदावन में कोई छेड़ाखानी नहीं होगी, ना कुंज गलियों में छेड़ाखानी होगी। उस ऑप्शन को भी नहीं माना। यमुना का खादर का ऑप्शन दिया, उसको भी नहीं माना। क्राउड मैनेजमेंट के लिए हमने कहा कि जहाँ जहाँ कॉरिडोर बने वहाँ व्यवस्थाएं सारी फेल हुई हैं। अभी कुंभ का समय था, सारी कुंभ के समय सब व्यवस्थाएं ध्वस्त थी। काशी में भी लोग बने, अयोध्या में भी लोग बने, सब व्यवस्थाएं फेल हो गई, वो भी ऑप्शन नहीं माना। हमने कहा तिरुपति में दर्शन के लिए आज भी वहाँ पे रजिस्ट्रेशन होते हैं, अगर वो रजिस्ट्रेशन अगर यहाँ होना शुरू हो जाए अभी से तो भी भीड़ लिमिटेड आएगी। कोई आदमी एक्स्ट्रा भीड़ क्यों करेगा यहाँ पर, जिसको जिस दिन मालूम होगा कि मेरा टाइम उस दिन है उसी दिन आएगा, तो भी लोग नहीं माने। हमने लास्ट ऑप्शन चौथा ऑप्शन दिया कि मंदिर के अंदर जो भीड़ रुक जाती है, ठहर जाती है, उसको रुकने और ठहरने में दो, वहाँ सीधी सीधी रेलिंग लगाओ, लोगों को दर्शन कराओ और बाहर निकाल दो। वो व्यवस्था कॉरिडोर बनने के बाद भी करेंगे, इस व्यवस्था को पहले भी कर सकते हैं, वो व्यवस्था में भी नहीं माने। तो सरकार तो जिद पे अड़ी हुई है कि हमको कॉरिडोर बनाना ही बनाना है, तो सरकार के आगे तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अपने प्रयास कोशिश जारी है हमारे। बाकी वाली मंदिर में जितने भी उत्सव और पर्व होते हैं उसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन को सौंप दी जाती है कि आप भीड़ को मैनेजमेंट करेंगे। क्राउड मैनेजमेंट उनके हाथ में रहता है, मंदिर के बाहर मंदिर के भीतर। तो हर उत्सव पे 2 दिन पहले सारे जितने डिस्ट्रिक्ट के बड़े बड़े अधिकारी होते हैं उन सबको सूचना पहुंच जाती है, कागज पर पहुंचा देते सूचना। तो उस दिन जन्माष्टमी की भी सूचना 2 दिन पहले मंदिर के मैनेजर ने उनको दे रखी थी कि आपको जिम्मेदारी संभालनी है। उस जिम्मेदारी के बाद भी उस दिन जिस दिन घटना हुई उस दिन सारे आला अधिकारी, जिले के सारे आला अधिकारी मंदिर में मौजूद थे, जो ऊपर से पहले फ्लोर पे खड़े हुए थे और सारे अपने घर वालों के साथ सेल्फी और वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे। नीचे हादसे हो रहे थे, उसमें भी जिस अधिकारी की जिम्मेदारी थी मंदिर के अंदर नीचे गेट खोलने की और गेट बंद करने की, उस दिन क्या किया गया, सारे गेट एक साथ खोल दिए गए। जो पब्लिक अंदर थी वो तो थी पहले से, और जो बाहर पब्लिक खड़ी थी एक साथ अंदर एंट्री कर दी, किसी को निकलने का मौका नहीं मिला। नहीं तो हर बार ऐसा होता था एक एक करके गेट खुलते थे, जिससे कि एक गेट एंट्री को एक गेट एग्जिट का खोल देते थे। तो सारे गेटों से भीड़ जानबूझ के घुसाई गई। अब दुर्घटना हो गई, 2 लोग मर गए, उसकी जांच माननीय मुख्यमंत्री जी ने जांच बैठाई। उसके लिए 2 लोगों की समिति में 2 लोग आए, सुलखान सिंह जी और गौरव दयाल जी, उनकी जांच समिति बैठी, सरकारी जांच हुई उसकी। उसमें आज तक कोई दोषी नहीं ठहराया गया, दोषी का कोई नाम नहीं आया आज तक, इसका दोषी कौन है। उसके बाद उनकी रिपोर्ट लगी, उस रिपोर्ट में 3 ऑप्शन दिए गए व्यवस्था को संभालने के लिए, क्राउड मैनेजमेंट के लिए, ABC करके। तो उसमें से जो लास्ट वाला ऑप्शन था कॉरिडोर वाला, वो ऑप्शन चूज किया गया। उससे पहले 2 उन्होंने ऑप्शन दिए थे, उन 2 ऑप्शनों पे काम ही नहीं हुआ। उन 2 ऑप्शनों में शायद एक ऑप्शन था कि ठाकुर जी का जो दर्शन है, जैसे अभी दर्शन बाहर जगमोहन में हो रहे हैं, ऐसे ही दर्शन 12 महीना हो जाए और ठाकुर जी का थोड़ा थोड़ा टाइम बढ़ जाए तो व्यवस्था कंट्रोल हो सकती है। उसके अलावा भीड़ को क्राउड मैनेजमेंट के लिए यहाँ की जो विधायक श्रीकांत जी हैं, उस पहले ऊर्जा मंत्री भी थे, उन्होंने भी लिख के दिया, उस समय भी लिख के दिया जिस समय घटना घटी थी। आज भी कुछ दिन पहले 2-4 दिन पहले लिख के दिया कि यमुना जी पूरी खादर खाली पड़ी हुई है, यमुना जी में कॉरिडोर बनाया जाए, वहाँ से पब्लिक को लाया जाए। यमुना की खादर में बाकी वाली मंदिर में केवल 100 मीटर का डिफरेंस है, अगर वहाँ कॉरिडोर बन जाए तो
सारा काम व्यवस्था व्यवस्थित हो सकती है, पूरा वृंदावन